Welcome everyone to a new video. So in this video we are going to talk about a very important reduction reaction which is called Kori-Bakshi-Shibata reduction, or it's also called as Kori-Itsuno reduction. So in this particular reduction reaction, what do we basically do? We reduce ketones into chiral secondary alcohols, and the reducing agent that we use for this particular transformation is a borane, okay, diborane. So it could be with the as a THF complex, it could be with dimethyl sulfide, or it could be diethylaniline, just the way it is shown here, okay. And we can also use catechol-borane as well. And the chiral catalyst that we use to carry out this particular transformation is called as the Kori-Bakshi-Shibata oxazoborolidine catalyst. So this is the structure of the catalyst. So this has a stereochemistry S. So we can also use the R stereochemistry. So when we use S stereochemistry, the stereochemistry that we generate for alcohol here is the R. So barring the fact that R1 should be greater than R2. What does that mean? इसका हम आगे चल के we are going to look it into the video how to prioritize the groups, और किस तरह से how we can just looking at the catalyst हम directly predict कर सकते हैं कि alcohol की stereochemistry क्या होगी. तो इस वीडियो के अंदर what are we going to see? We are going to see the method that is used to synthesize this chiral oxazoborolidine catalyst, which could be very important because the synthesis could be asked in exam as well. Then we are going to look at the structure of this particular catalyst कि molecular model में how does it look like, ठीक है, किस तरह से stereochemistry impart करता होगा. Then we are going to look at the mechanism. Honestly, mechanism में I will not go very deep into it. The reason being because this mechanism I feel can be best taught in a classroom rather than through the videos or the molecular models, ठीक है. So in this video we are going to mostly focus on the number of examples. So that's the reason why I have like 40 examples based on this particular transformation. So every possible example has been included in this particular video. Then we are going to look at how to prioritize the larger group and the smaller group. So this RL means larger alkyl group or aryl group, or RS means the smaller aryl group, ठीक है. But obviously based upon the catalyst we will know what should be the product, ठीक है. So let's start the video. So the first thing that we are going to look at the synthesis of this oxazoborolidine catalyst. So the synthesis we can also start from the asproline. So this particular synthesis is given in the Claydon book as well, so you can refer that particular book. So it has been taken from there. So we can start from the asproline. So what do? We basically treat it with the benzoyloxycarbamyl chloride under basic conditions. So जैसे ही आप NaOH डालते हैं, what it does, it abstracts this proton as well NH का, और इसका भी क्या बना देता है, एसिड का सोडियम सॉल्ट बना देता है. हमको पता है कि N- इज मोर रिएक्टेड देन कार्बोक्सिलेट. सो यहाँ पर आपका इस पे कार्बोनिल पे अटैक करके व्हाट डू इज बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर प्रोटेक्टिंग दिस नाइट्रोजन, और कुछ नहीं कर रहे हैं. और उसके बाद हम क्या करते हैं, दैन व्हाट डू वी सिंपली कैरी आउट द फिशर एस्टरिफिकेशन ऑफ द एसिड with the methanol, okay, under acidic condition. So this is called the Fischer esterification, followed by the treatment with the phenyl magnesium chloride. और हमको पता है कि जब भी हम एस्टर्स को ग्रिग्नार्ड से ट्रीट करते हैं, what do we end up getting is the tertiary alcohol. So this is what we end up getting. And the next step is basically the cleavage of CBZ protecting group, ठीक है. This is nothing but this is the CBZ protecting group with the help of the HCl salt. अब इसका mechanism देख लेते हैं. बहुत straight forward mechanism है, but this is something that you should know because in exam at times you could also be asked what is the byproduct of this reaction. So हमको पता होना चाहिए कि the byproduct is the benzyl chloride and CO2 जब भी हम CBZ को deprotect करते हैं, ठीक है. सो आप क्या करते हैं, डीप्रोटेक्शन के बाद डू एंड अप फॉर्मिंग इज द HCl सॉल्ट. सो NaOH जो आप डाल रहे हैं इज टू न्यूट्रलाइज दिस HCl सॉल्ट ताकि आपको फ्री अमीन मिल सके, ठीक है. उसके बाद व्हाट डू इज यू कैरी आउट द रिएक्शन ऑफ दिस बोरोनिक एसिड, ठीक है, मिथाइल बोरोनिक एसिड, टू फॉर्म द oxazoborolidine catalyst. So this has a stereochemistry S, ठीक है. This here I am talking about the SCBZ catalyst. इसके अलावा you can also start from
एल पायरोग्लूटामिक एसिड। जब आप एल पायरोग्लूटामिक एसिड से स्टार्ट करते हैं, व्हाट डू वी डू, यू फर्स्ट स्टेप अगेन इज अ फिशर एस्टेरिफिकेशन। आपने एसिड को एस्टर कर लिया एंड देन यू आर ट्रीटिंग विद मिथाइल फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो कि ग्रिग्नार्ड स्टेप है आपका। सो व्हाट डू यू एंड अप गेटिंग इज दी टर्शरी एल्कोहल। और आपने क्या किया है कि बेसिकली पहले स्टेप में आपने ग्रिग्नार्ड तो कर दिया, दूसरे स्टेप में व्हाट यू आर डूइंग इज बेसिकली एमाइड को रिड्यूस कर रहे हैं आप बोरेन से टू एमीन। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैकेनिज्म है। सो बोरेन से दिस इज़ हाउ द एंटायर रिएक्शन टेक्स प्लेस। आप जब सो इसके अंदर आपको व्हाट डू यू नीड इज़ द एक्सेस ऑफ बोरेन। एक्सेस ऑफ बोरेन कैन फॉर्म अ बोरेन, क्या करता है कि ऑक्सीजन कैन अटैक द बोरेन टू फॉर्म दिस कॉम्प्लेक्स। एट द सेम टाइम it can also carry out the reduction of this particular आपका amide का, and then this is how the boron is hydride is delivered to this hydrogen. So this is the intermediate that you form. So the negative charge comes, it leaves. So this is the intermediate that you form, and then now the hydride is delivered. So this is the cyclic intermediate that you form. और जैसे ही आप इसके अंदर water डाल के quench करते हैं, हमको पता है कि this is not stable. So आपका क्या होता है कि this boron intermediate आपका ब्रेक करके गिव यू दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, जो कि यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है, ठीक है। एंड देन लास्ट स्टेप दोनों के केस में सेम है। अब आपने मिथाइल बोरोनिक एसिड से आपने टोल्यूइन में ट्रीट किया टू गिव यू दिस कायरल ऑक्सा एजाबोरोलिडीन कैटलिस्ट, ठीक है। द रीज़न आई हैव टेकन द सिंथेसिस ऑफ दिस कैटलिस्ट क्योंकि आई फील कि एग्जाम में इसका सिंथेसिस भी या फिर इसका सर्टन स्टेप आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट हाउ डज दिस लुक मॉलिक्यूलर मॉडल के अंदर, ये किस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता कैसा है कैटलिस्ट का, हम वो देखने वाले हैं। सो जैसे कि दिस इज़ हाउ दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड। जैसे कि दिस इज़ दी SCBG कैटलिस्ट, और या तो आपको दिया होगा हाइड्रोजन दिस इज गोइंग बिहाइंड द प्लेन, तो कभी कभी आपको दिस इज ऑल्सो रिटन लाइक दैट व्हेन दिस बॉन्ड इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। दे कैन शो आइदर, इन दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर आपको दिखा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दे आर टॉकिंग अबाउट द एस कैटलिस्ट। अब इसका स्ट्रक्चर बेसिकली कैसा है कि हम देख सकते हैं, तो दिस इज दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द रिंग एंड इट इज़ दिस रिंग। यहाँ पर मैंने आपको जो एटम है उसको मैंने यहाँ पे क्लियरली इसके ऊपर मैंने लेबल किया हुआ है। यू कैन क्लियरली सी दिस हाइड्रोजन, इट इज़ गोइंग बिहाइंड द प्लेन। और ये जो दोनों की दोनों रिंग हैं आपकी, ये दोनों की दोनों रिंग क्या है कि एक तरह से जैसे आपकी बुक की पोजीशन होती है, हाफ बुक को आप ओपन करेंगे, ये उस तरह की होती है। तो इसका मतलब है कोई भी कोऑर्डिनेशन अगर होगा वो नीचे से होगा। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, हमको पता है कि नाइट्रोजन का क्या है, नाइट्रोजन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपके, दिस इज गोइंग बिहाइंड द प्लेन, ठीक है। जैसे कैसे, जब आप इसके अंदर बोरोन, यहाँ पे मैंने बोरोन DMS लिया है, आप बोरोन THF भी ले सकते हैं, बोरोन डाइथाइलामीन भी ले सकते हैं, या कैटेकोल बोरोन भी ले सकते हैं। उससे जब आपका ये कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, इट कैन ओनली कोऑर्डिनेट फ्रॉम बिहाइंड द प्लेन, ठीक है। उसका रीज़न क्या है, जैसे आप, मैंने क्या बोला आपको, नाइट्रोजन के साथ एक बॉन्ड ये कनेक्टेड है, दूसरा बॉन्ड यहाँ कनेक्टेड है, तीसरा यहाँ है। सो इसके जो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है, दिस इज गोइंग बिहाइंड द प्लेन। जैसे कि दिस इज अ वेरी वेरी गुड स्ट्रक्चर टू रिप्रेजेंट। सो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देज आर हेयर। सो आपका जो बोरोन के साथ नाइट्रोजन का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, ये केवल नीचे से ही बन सकता है। और हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर आप दोनों की दोनों जो रिंग है, ये आपकी हाफ बुक जैसे होती है उस तरह से इन्होंने दी हुई है। सो दिस इज़ द रीज़न वाई कोई भी अप्रोच आपका, जब आप कीटोन का अप्रोच होता है ना, ऊपर से तो पॉसिबल है ही नहीं। सो कीटोन कैन ओनली अप्रोच फ्रॉम दी बॉटम, ठीक है। वो हम आगे मैकेनिज्म में देख लेंगे। सो ये वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जब आप ये कायरल कैटलिस्ट लेते हैं, वो बोरोन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। सो दिस इज़ दी एक्चुअल स्पीशीज़, मतलब ये एक्चुअल स्पीशीज़ है जिसकी जो कि रिडक्शन को इनएंशियो सिलेक्टिव मैनर में कॉज करता है इन कोरीबक्षी शिबाता कैटलिस्ट। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। जस्ट रिमाइंडर वंस अगेन, सारे के सारे आइटम हमने लेबल कर रखे हैं। सो हमको पता है कि नाइट्रोजन इज टेट्राहेड्रल इन नेचर, 1 2 3, और केवल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ है। एज अ दैट इज़ द रीज़न वाई यू द कोऑर्डिनेशन इज ओनली पॉसिबल फ्रॉम बिलो द प्लेन। और यहाँ पर आप हाइड्रोजन भी देख सकते हैं, वो ये वाला आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। इस कार्बन, नाइट्रोजन का कार्बन कनेक्टेड है, दिस हाइड्रोजन इज ऑल्सो गोइंग बिहाइंड द प्लेन। और आप क्लियरली देखो इस तरह से पूरा का पूरा वी शेप बना हुआ है, ठीक है। नाउ लेट अस लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द RCBG। RCBG का भी एग्जैक्टली सेम है, कुछ फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा। RCBG भी आपका यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होता है, दिस इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। तो दिस कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड लाइक
दिस वन, दोनों के दोनों स्ट्रक्चर सेम है। अब इस केस के अंदर आप देखो, अब हाफ बुक है लेकिन नीचे की तरफ है, और इस केस में आप क्लियरली देख सकते हो हाइड्रोजन इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। नाइट्रोजन हमको पता है टेट्राहेड्रल है, नाइट्रोजन बोरोन के साथ कोऑर्डिनेट है, इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ। सो इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, दिस इज कमिंग टुवर्ड्स अस। तो जब आप इसके अंदर बोरिन रिएजेंट डालते हैं तो आपका नाइट्रोजन और बोरिन का जो कॉम्प्लेक्स बनता है, दिस कैन ओनली फॉर्म व्हेन फ्रॉम द टॉप फेस, ठीक है। सो इसको इस तरह से हमने मॉलिकुलर मॉडल से क्लियरली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नीचे तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सो नाइट्रोजन जस्ट कैन नॉट कोऑर्डिनेट फ्रॉम बिलो द प्लेन, सो इट कैन ओनली कोऑर्डिनेट फ्रॉम द टॉप और साइड, ठीक है। सो वी कैन सी दैट हाइड्रोजन इज ऑल्सो कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है, एंड द बोरोन इज ऑल्सो इंटरैक्टिंग विद द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन टू फॉर्म दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स, एंड इट इज दिस कॉम्प्लेक्स दैट कॉजेज द रिडक्शन, ठीक है। Now I am going to directly jump on the how to predict the stereochemistry, ताकि you can bang on predict the right product just by simply looking at the starting material. So let's just show you that, guys. Okay, so यहाँ पर आप देख सकते हैं कि let us suppose if you are dealing with this particular ketone, जैसे कि यहाँ पर मैंने example ले लिया है कि this is nothing but acetophenone, ठीक है, आपका एसिटोफेनोन है। अब अगर ये सी फेस है, सी फेस का मेरा मतलब क्या है कि इसको हम प्रेफरेंस देंगे 1 2 3, सो दिस इज गोइंग टुवर्ड्स दिस वन, सो दिस इज कॉल्ड दी सी फेस। और अगर आप एस कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो हमेशा आपको आर प्रोडक्ट मिलेगा, एक चीज़ याद रखना हमेशा। सो अगर आप सी फेस अगर आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है, एंड इफ़ यू आर यूजिंग द एस कैटलिस्ट एस बोरेन एंड रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे मैंने बोला इट कुड बी बोरेन DHF, इट कुड बी बोरेन DMS, इट कुड बी कैटेकॉल बोरेन, ठीक है। सो व्हाट यू विल गेट इज द आर। इफ यू आर यूजिंग एन आर कैटलिस्ट, सो द प्रोडक्ट द स्टीरियोकेमिस्ट्री दैट यू आर गोइंग टू गेट इज द एस। बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी इसके अंदर है ही नहीं, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल तरीका आपको पता लगाने का, मीन्स इन अ वे सारी पूरे के पूरे वीडियो का एक बहुत शॉर्ट गेस्ट है। सिमिलरली अगर आप रीफेस कीटोन का कंसिडर करें, क्योंकि कीटोन को अगर आपको दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, आपको वैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो हमको यहाँ पर हमने क्या करी है कि एक तरह से प्रायोरिटी दी है, क्योंकि हम इसको लार्जर ग्रुप बोल रहे हैं फिनाइल को, और मिथाइल को हम स्मॉलर ग्रुप बोल रहे हैं। और दूसरा तरीका इसको देखने का सी फेस और रीफेस से, यहाँ पर इसकी प्रायोरिटी 1 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 3 होगी, is going like that. So this is the reface. इस केस में अगर if you are using S catalyst, the product that you are going to get is the R. और अगर आप R यूज़ करें, the product that you are going to get is the S. So मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि just look at the catalyst that you are using for this particular reaction. So you can clearly और easily predict कर सकते हो कि stereochemistry क्या होगी, ठीक है। अगर catalyst S है, R होगा, यहाँ पे भी S है तो R होगा, यहाँ पे R है तो S होगा, यहाँ R है तो S होगा। सो दिस इज़ हाउ यू गो अबाउट प्रिडिक्टिंग दी स्टीरियोकेमिस्ट्री। आगे हम देख लेंगे किस तरह से हाउ कैन वी प्रिडिक्ट दी लार्जर ग्रुप, स्मॉलर ग्रुप के अलग अलग तरह के एग्जांपल्स हम देख लेंगे। उससे पहले क्विकली एक मैकेनिज्म हम देख लेते हैं जो कि एक्चुअली क्लीडन बुक के अंदर दिया हुआ था। दिस इज मैकेनिज्म जस्ट टू मेक यू गाइज look at the transition state, which is a 6-member transition state. So have a look at the mechanism. जैसे कि मैंने बोला था कि in this particular reaction, so this is basically acetophenone. So what you are carrying out is the CBG reagent है, बोरेन के साथ complex बना, this is the S catalyst. So the product that you get is the R. The most important चीज़ आपको जो याद रखनी है वो है कि this goes via the 6-member transition state. I'm not going, as I said, into the exact transition state. This is because the reason being, अगर मैं इसे वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट. सो आई डोंट वांट यू गाइज टू फॉल ट्रैप टू दी exact mechanistic course via which this reaction takes place, because this particular mechanism requires a classroom understanding with the molecular models. Only then you can understand. See, so important चीज़ आपको जो याद रखनी है वो केवल ये याद रखिए कि अगर let us say ऐसा हो सकता है कि in the GATE exam you could be ask कि इस particular reaction की what is the transition state. So in that case what you have to remember is that the larger group, for example इन दोनों के case के अंदर larger group is the phenyl group, the smaller group is the methyl group. So you should always remember that the phenyl group, okay, is the larger group, so it would prefer to stay at the pseudo-equatorial position, okay, and फिनाइल विल स्टे एट द सूडो एक्सियल पोजीशन. नाउ और दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है कि ऑक्सीजन जो आपका होता है ऑफ द कीटोन,
इट कोऑर्डिनेट्स विद द बोरोन ऑफ द ऑक्सा एज अ बोरोलिडीन, ये वाला। और आपका जो बोरेन रिएजेंट है वो का हाइड्राइड कोऑर्डिनेट करता है कार्बोनिल से, क्योंकि यही हाइड्राइड यहाँ पर आपका डिलीवर हो रहा है। सो लेट्स नॉट गो डीप इनटू दैट, ठीक है, केवल यहीं तक हम छोड़ देते हैं कि ये आप चीज़ याद रखना है, गोज वाया 6 member ट्रांजिशन स्टेट वेयर द हाइड्राइड इज डिलीवर्ड। ओके, so now how to prioritize the larger group and smaller group? Let us suppose if we are dealing with an aryl alkyl ketone, मतलब यहाँ पर आपका क्या है कि this is an aryl group, here nearby you have an alkyl group, तो हमेशा aryl group will be the larger group and alkyl group will be the smaller group। तो जैसे इन तीनों के तीनों एग्जाम्पल के अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि लार्जर ग्रुप हमारा ये है और स्मॉलर ग्रुप ये है, और कैटलिस्ट हमारा क्या है कि हमने तीनों के केस में एस कैटलिस्ट हमने लिया हुआ है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट कुड बी डिफरेंट, यहाँ पे हमारा बोरोन डाइथाइलामीन है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा कैटेकोल बोरेन है, यहाँ बोरोन डीएमएस है। लेकिन तीनों केसेस के अंदर आप एक चीज़ ध्यान क्लियरली बोल सकते हैं, क्योंकि हमने एस यूज़ किया है, इसलिए तीनों केस में द स्टीरियोकेमिस्ट्री इज गोइंग टू बी आर, मतलब जो आपका अल्कोहल बनेगा इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, आर है। एंड यू कैन क्लियरली सी द इनैंशियोमेरिक एक्सेस इज वेरी हाई इन ऑल दीज 3 cases. Okay, so the alkyl group is going to have the higher priority than the aryl group is going to have the higher priority than the alkyl group, and if you are using S जैसे कि मैंने बताया, so the product is going to be R. Similarly, what about the dialkyl ketone? So here what we have is the 2-alkyl substituent. So this is like, you know, more substituted alkane than this one. So this is going to have the higher priority than this one, and as I said, since we are using S, the product that we are going to get is the R. और यहाँ पर भी this is the cyclohexane ring and methyl group, and this is the large priority, this को small मिलेगी alkyl group को, and again since we are using S, the product is going to be the R. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल तरीका है ये इनको पता लगाने का। इसके अलावा व्हाट अबाउट अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड इनोन वर्सेस अल्काइल? तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब भी हमारे अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड इनोन्स के अंदर हमारा अल्फ़ा बीटा इस वाली साइड को हमेशा ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी देन दी अल्काइल ग्रुप। सो इन ऑल दीज केसेस यू कैन क्लियरली सी, सारे के सारे केसेस में व्हाट वी हैव इज दिस अल्फ़ा बीटा इनोन्स वर्सेस एराइल, ठीक है। हमने क्या किया कि इनको 2 साइड में बांट दिया, इसको हमने अल्काइल बोल दिया, इसको हमने अल्फ़ा बीटा इनोन बोल दिया, इसको हमने अल्काइल बोल दिया, इसको अल्फ़ा बीटा इनोन बोल दिया। सिमिलरली यहाँ पे इसको अलग और इसको हमने अलग कर दिया। बट जैसे कि मैंने बोला, ये सब भी देखने की आपको ज़रूरत है ही नहीं कैटेगराइज करने की। इफ़ यू लुक एट द कैटलिस्ट्स ऑन द केसेस, इस सारे के सारे केसेस के अंदर व्हाट वी आर टेकिंग इज दी एस ऑक्सा एज अ बोरोलिडीन कैटलिस्ट, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट बोरेन रिएजेंट, जैसे कि मैंने बोला, इट कुड बी डिफरेंट, बट द प्रोडक्ट इन ऑल दीज केसेस इज गोइंग टू गिव यू दी आर स्टीरियोकेमिस्ट्री। मतलब अल्कोहल की स्टीरियोकेमिस्ट्री व्हाट यू विल गेट इज दी आर, एंड इट इज द सेम इन ऑल द केसेस. So this is how you can easily predict the stereochemistry or the desired product with the help of the catalyst that you are using for the particular reaction. ठीक है, larger और smaller, just so that you guys understand, ताकि exam के अंदर अगर आपको पूछा जाए so you are able to put them into the pseudo equatorial position. उस चीज़ के लिए है वो, ठीक है. Now let us look at what about the alpha beta alkynyl ketone versus alkyl. Obviously alkynyl will have higher than the normal alkyl, ठीक है. तो again we are using S, so the product is going to be R. यहाँ पर एक important चीज़ आप देखें, here what we have is जब भी आपकी cyclopropane ring होगी, ठीक है, versus alkyl, so this is going to get the higher priority than the alkyl group. So just keep this particular example in mind, and this is a very very important example. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू मस्ट ऑल्सो कीप इन माइंड, अगर आपका कोई भी मेटल कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, दिस विल हैव द हायर प्रायोरिटी देन दी इन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एराइल ग्रुप. यहाँ पर हमारा क्या है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एराइल ग्रुप है, क्लोरो लगा है, और यहाँ पे हमारा मेटल कॉम्प्लेक्स है, मेटल कॉम्प्लेक्स वर्सेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एराइल. सो दिस विल हैव ऑलवेज हैव दी हायर प्रायोरिटी, एंड सिंस वी आर यूजिंग एस, द प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू गेट इज दी आर. ठीक है, यहाँ इस केस के अंदर यू रियली नीड टू नो विच वन विल हैव दी हायर प्रायोरिटी. ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. So this is interesting. So whenever we are talking about diaryl ketones, in case of the diaryl ketones, always the electronic effects they predominate. ठीक है, जैसे कि मैंने बोला इलेक्ट्रॉन रिच एराइल रिंग, मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, जैसे कि ओ मिथॉक्सी, जैसे ओ टिप्स हो गया यहाँ पे, ठीक है, दे विल हैव दी हायर प्रायोरिटी. एंड
इफ देर इज नो सब्सटीट्यूएंट ऑन द ऑर्थो पोजीशन, मतलब इस ऑर्थो पोजीशन पे भी कोई सब्सटीट्यूएंट नहीं है, इट इज गोइंग टू हैव द लार्जर प्रायोरिटी. जैसे फॉर एक सिंपल एग्जांपल ये ले लेते हैं. हियर व्हाट वी हैव इज दिस नाइट्रो ग्रुप हियर that is attached to the at the para position. Here what we have is a TIPS group, so this will have the higher priority than this one. और अगर हम इसको S catalyst से करेंगे, so as I said, but the product that we are going to get is the R. Similarly here what we have is the lowest priority किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग की, और रिंग जिसमें ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट होगा. जैसे कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में व्हाट वी हैव इज अ ब्रोमो एट द ऑर्थो पोजीशन, सो दिस विल बी दी लेस प्रायोरिटी. ठीक है, इसकी स्मॉलर इसकी प्रायोरिटी मिलेगी. आर एस, दिस इज आर एस का मतलब है स्मॉलर. सो द प्रोडक्ट दैट वी आर गोइंग टू गेट इज दी आर. इन दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल. ये इसलिए लिया गया जस्ट टू शो यू, ऑल दो आपका मिथाइल ग्रुप है ऑर्थो पोजीशन में, बट मैंने क्या बोला था कि इफ़ यू हैव एन substituent at the ortho position, this is going to get the less priority. Although यहाँ पर कोई भी substituent नहीं है, इस पर एक भी electron donating substituent नहीं है, but since there is no substituent at the ortho position, so this will get the larger this will be larger group as compared to this one. क्योंकि ऑर्थो में होने की वजह से there are lot of sterics that come into play, जिसकी वजह से इसकी प्रायोरिटी कम हो जाती है. So if you treat it with S, the product you are going to get is R. ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल एग्जांपल है. व्हाट वी हैव इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और यहाँ पर दिस अ पिरिडीनियम सबस्ट्रेट, जहाँ पे पिरिडीनियम के लोन पे ऑफ इलेक्ट्रॉन BF3 के कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. सो इसका मतलब दिस इज अ वेरी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रिंग. सो द प्रोडक्ट दैट यू गेट आफ्टर एज अ रिजल्ट ऑफ द रिडक्शन विद S कैटलिस्ट इज R स्टीरियोकेमिस्ट्री एट दिस पोजीशन. आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी. अब हम एक रीज़न देख लेते हैं. व्हाट इज़ द रीज़न वाई दिस पर्टिकुलर ट्रांजिशन स्टेट, जैसे कि हम यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट. सो अगर हम एक ट्रांजिशन स्टेट देखें, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट वाया विच इट गोज थ्रू. तो एक तरह से हमारा ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, दिस इज प्रेजेंट एट दी, हमारा एक तरह से क्या है कि ये शूडो इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट है. मतलब हमारा जो लेस प्रेफर्ड है वो शूडो इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट है. यहाँ पे हमारा क्या है कि मोर प्रेफर्ड हमारा शूडो इक्वेटोरियल पे पोजीशन वो है हमारा प्रेजेंट है. सो दिस इज नॉट फेवर्ड, दिस इज द वन दैट इज फेवर्ड. उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये होता है कि आपका व्हेन दिस पर्टिकुलर ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, ये आपका मिथॉक्सी के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काफ़ी अच्छे से डोनेट होते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है दिस इंक्रीजेज. सो द ऑक्सीजन कैन फॉर्म, दिस इज अ बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एंड विद द बोरोन के साथ. ठीक है, काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन हो सकता है. यहाँ पे आप देख रहे होंगे बोरोन के साथ बोटाइल ग्रुप लगा है. सो फ्रॉम द एग्जाम्पल दैट वी हैव सीन, शुरू के अंदर जो मैंने कैटलिस्ट का सिंथेसिस दिखाया था वहाँ पे मिथाइल ग्रुप था. सो हियर व्हाट वी कैन हैव इज अ मिथाइल ग्रुप एज वेल, हाइड्रोजन एज वेल एंड बुटाइल ग्रुप. सो एक वेरियस आपके वो हैं, मतलब क्या कह सकता हूँ आपको, वेरियस टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट दैट आर अवेलेबल. तो दूसरी चीज़ क्या होती है, इस तरह के कोऑर्डिनेशन के साथ जब नाइट्रो यहाँ पर है, एट द सेम टाइम डोनेशन भी अच्छा हो रहा है, और नाइट्रो क्या करता है अपने माइनस आई इफेक्ट से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा देता है इस कार्बन की, जिसकी वजह से हाइड्राइड डिलीवर्ड बहुत आसानी से होता है. मतलब कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बहुत ज़्यादा आपका न्यूक्लियोफिलिक बन जाता है. सो देयर इज अ फाइन बैलेंस व्हेन दिस पर्टिकुलर ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जब भी आप CBS कैटलिस्ट रिडक्शन करते हैं, व्हाट यू एंड अप गेटिंग इज दी R alcohol as the desired product. ठीक है. So now, so this is a very very interesting example. Whenever you have a ketone in which you have a carbon that is attached to it's an electronegative atom, जैसे कि हमारे CF3 हो गया, CCl3 हो गया, CBr3 हो गया. Always keep that particular thing in mind. इसकी हमेशा प्रायोरिटी लार्ज होगी देन दिस पर्टिकुलर ग्रुप. ये एल्काइल भी हो सकता है, ये सेकेंडरी एल्काइल भी हो सकता है, टर्शरी एल्काइल भी हो सकता है. दिस कैन बी अ फिनाइल रिंग, टेट्रा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, और इट कुड बी अ बिग बिग फिनाइल रिंग लाइक एंथ्रासीन टाइप आपकी रिंग हो गई. डज नॉट मैटर. इट इज़ दिस पर्टिकुलर कार्बन which has like 3 fluorine, 3 chlorine or 3 bromine, which is going to get the higher priority. So the product in this case is always going to be R, क्योंकि आप यहाँ पे S कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं, so it is going to be R. हमेशा एक चीज़ याद रखना, डिपेंड करेगा कि आप कौन सा वाला आपको कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं. Since in this case we are using S, so the stereochemistry you get here is the R, क्योंकि प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा है, तो इसको हम देंगे तो 1 2 3.
दिस इज S, so this is going to be, हम उसको कॉन्फ़िगरेशन को रिवर्स करेंगे, दिस इज going to become R. Just keep this particular thing in mind. Okay. So यहाँ पर एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है. सो द फर्स्ट एग्जाम्पल यू कैन क्लियरली सी हेयर व्हाट वी हैव इज अ कीटोन. हमको याद रखना है क्योंकि हम R यूज़ कर रहे हैं तो प्रोडक्ट S ही होगा. कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको. मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इवन आपको R स्मॉलर और लार्जर क्या है वो भी देखने की आपको ज़रूरत नहीं है. अगर आपको ये चीज़ पता है, अगर आपको R और S कॉन्फ़िगरेशन करना आता है तो आप क्लियरली पता लगा सकते हैं इस केस के अंदर. ठीक है. सो हेयर ऑल्सो सिंस वी आर यूजिंग R, S, here also in this particular example doesn't matter how big this particular molecule is, and you can clearly see the utility of this particular reduction pathway. यहाँ पर आपका क्या है कि functional group like TMS, TBDPS, these are tolerated. आपका ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं हो रहा है, इन ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं हो रहा, सेलेक्टिवली कार्बोनिल का रिडक्शन ही हो रहा है. In this particular case as well, what you have is this epoxide which has also been left untouched during this particular reduction pathway. And again S, so in this particular reduction as well, since we are using R, product is S. And here also what we have is a very very interesting example. अगर आप देखें तो इस केस के अंदर जैसे what you have is a 2 ketones. So under controlled condition हम क्या कर सकते हैं, we can selectively reduce one of the ketones. ठीक है. तो इसके अंदर आपका एक selectively एक कीटोन का रिडक्शन किया गया. Since we are using R catalyst, so the product that you get is the S. Here also the catalyst that you're using is R, so as a result of the reduction what you get is the S. So क्योंकि अब यहाँ पे भी वैसे भी देख सकते हैं what we are using is this is alpha beta unsaturated enone, so this will have the larger, this is a higher priority than this particular group. ठीक है. Product is the S, and the other functional groups like TMS, they are left untouched as a result of the CBS reduction. And this is the other example. Here what we have is using RCBS catalyst for the reduction with boron DMS, big looking molecule. Since we are using R, product is S. Here as well, since we are using RCBS catalyst to carrying out the reduction of this particular ketone, so the desired stereochemistry that is going to form is the S. Simple. Okay, so now let's move to the examples of SCBS catalyst, जहाँ पर हम S use कर रहे हैं. अब तक तो हम R use कर रहे थे. So here in order to carry out the reduction of this particular carbonyl group, what we are using is the S catalyst. Now, since we are using S catalyst, so in all these cases, the stereochemistry that is going to be installed is R. आप clearly देख सकते हो. ठीक है. सारे के सारे examples के अंदर. So here even the functional groups like TBS, they are tolerated. आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइनाइड कोई इसका रिडक्शन नहीं हुआ, दे हैव बीन लेफ्ट अनटच्ड एंड कार्बोनिल हैज़ बीन सेलेक्टिवली रिड्यूस्ड. सो ये एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है. सो आफ्टर द रिडक्शन इफ यू ऐड NaOH, you can clearly see this OH, it just does the nucleophilic substitution to get the epoxide. So this is a very very important example that you should remember. And what we have is one more example. SCBS catalyst, बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे कि मैंने जो पॉसिबल हो सकते थे हैव टेकन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो यू हैव प्रोटेक्टिंग ग्रुप लाइक MOM विच आर यूजली नॉट, विच आर स्लाइटली लेबाइल टू एसिडिक कंडीशन, और वी हैव इज एन THF रिंग्स. ठीक है. टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन रिंग है. एंड अगेन यहाँ पे आपने कीटोन को सिलेक्टिवली इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड यूजिंग दी SCBS catalyst to R. In this particular example as well, what you are using is S, the product is R. Here as well what you are doing, since you are using S, so the product you are getting is R. उसके बाद आपने क्या किया, इसका जो न्यूली फॉर्म्ड OH आप उसका मॉम प्रोटेक्शन कर दिया. ठीक है. और इस केस के अंदर what you are doing, you have, okay, this is a very interesting video. So this is a very important example. So I made a video basically in the first step what you are carrying out is the Segusa E2 oxidation. Segusa E2 oxidation, so what do you introduce is the double bond at this position. So I have made a video on the Segusa E2 oxidation जिसको आपको अभी आई के अंदर दिख रहा होगा. So if you want to watch this particular video, it's a very good video to let you know guys कि किस तरह से LiHMDS, TMS chloride and presence of palladium acetate we can oxidize ketones into अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन. सो पहले स्टेप में तो आपने उसको क्या किया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बनाया, और फिर आपने क्या किया, SCBS कैटलिस्ट से रिडक्शन करके द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द अल्कोहल दैट यू इंट्रोड्यूस इज द R स्टीरियोकेमिस्ट्री. ठीक है. और again big looking molecule,
केवल हमें कीटोन देखना है और कौन सा वाला इन्वॉल्व है. सिंस इट इज S, सो द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी R. स्ट्रेट फॉरवर्ड. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पे. अगेन स्टीरियोकेमिस्ट्रीज ऑफ द कैटलिस्ट दैट वी हैव यूज्ड इज S, so the product that we are going to get is the R. Up in all these cases you can also prioritize as per the basis of the which one is going to be large group, which is going to be the smaller group. जैसे कि मैंने पहले आपको I have clearly shown you. So this is entirely up to you. And here one more example of few more example of S. Same, there is absolutely no change. Since you're using S, so the product is going to be R. Here also, since you're using S, the product is going to be R. So you should be good with the R and S nomenclature. If you're good with that, you can clearly bang on predict the product of the reaction. So here also, since as I said, जब मैंने पहले भी लिया था, whenever you have the groups like CCl3, CBr3 or CF3, this will have the higher priority than any of the alkyl or the benzyl group. Since you are using S, so here the product is going to be R. Or okay, so this is something that is very, very important. That's a very important example that I came across. So what you have is this particular compound. यहाँ पे एक तरह का पूरा total synthesis और rearrangement दिया हुआ है, and I feel this is a very important example. So in the first step, what they are doing, they are basically carrying out the CBS reduction using S catalyst. So the stereochemistry that you installed is R. And here what you have is an alkenyl iodo. So what they carried out is the Sonogashira coupling reaction to introduce this alkynyl chain. और उस alkynyl chain के बाद what they carried out is the Johnson-Claisen rearrangement using an orthoester. So whenever you treat this particular alcohol with orthoester, this is the intermediate that you form, and you can clearly see orthoester, they form this particular intermediate, then alcohol can attack and it goes through all these steps to give you this particular rearranged product. So in our case, similarly, orthoester say this is the intermediate that we form, and when it is subjected to 3,3 sigma topic rearrangement, the stereochemistry at this position is conserved at this center. So the stereochemistry here is R, and this is the methyl group which gives the S stereochemistry. Now this particular diastereomer forms in 7.5:1 ratio, and then what we are doing is basically we are carrying out the hydrolysis of the ester to acid to give you this acid, और उसके बाद उन्होंने क्या आयोडीन इलेक्ट्रोलाइजेशन किया NiS के प्रेजेंस में. So what happens, एल्काइन का दिस इज दी आयोडोनियम आयन फॉर्म्स, और सोडियम बाइकार्बोनेट आप यूज़ कर रहे हैं, सो कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म्स. ये क्या करता है, इस पर सिंपली अटैक करता है टू गिव यू दिस पर्टिकुलर कंपाउंड. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल. सो क्योंकि इसमें मल्टी स्टेप पाथवे है, और मुझे लगता है कि दिस इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी दैट सच क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड. And this is the last example of this particular video, और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है. सो here what we are doing basically, we are using DCC coupling to form the ester, मतलब हम acid और alcohol की coupling कर रहे हैं to form the ester. And in the next step what we are doing is basically intramolecular palladium catalyzed coupling reaction between this carbon and this carbon. ठीक है, हमने अंडर हेक्स कपलिंग में. सो दिस इज द लैक्टोन दैट वी हैव फॉर्म. अब जब हमने लैक्टोन का रिडक्शन किया, हमने कोरी बख्शी शिबाता कैटलिस्ट, सिंस वी हैव यूज्ड एस कैटलिस्ट, सो द प्रोडक्ट दैट वी एंड अप गेटिंग इज द एम. ठीक है, पी क्या होता है हमारा क्लॉकवाइज होता है, एम क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है. अगर हम यहाँ आर यूज़ करते, सो द प्रोडक्ट दैट वी वुड हैव गॉट इज द पी. ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एंड आई फील इस ईयर आई थिंक आइदर इन द गेट और नेट it has a very high probability of being asked. ठीक है, so just keep this particular example in mind. ठीक है, I hope you guys like today's video, और अगर आपको कोई confusion हो, कुछ हो, तो ज़रूर मुझे लिखिए. And if you like my work, subscribe to the channel, share the videos with your friend, and thanks a lot for watching the video. Take care of yourself. Have a very, very good day. Bye.